Boys and girls, I'm going to discuss a very important question from the chapter of friction. As you all know that according to the NEP 2020 scheme, the friction chapter has now only two different kinds of questions that would be asked. One is block friction and the other one is ladder friction. Now, the last two question papers that I've seen, in both of the question papers, the examiners have focused on block friction. So I don't know whether my predictions are right or not, but this time I am expecting that a question on ladder friction might appear, but as you all know that it is very much unpredictable kind of a scenario when it comes to Mumbai University question papers. So they might stick with the block friction itself. But to be on the safer side, it is always better to prepare every single concept that is present in a particular chapter. So as I said, as far as my prediction goes, okay, of course with conditions applied, yeah. As far as my prediction goes, there would be a question on ladder friction. So boys and girls, this session is dedicated towards understanding the ladder friction from the chapter of friction. Now, if you see this question, quite a simple question. It says a ladder of 4 मीटर लेंथ. तो देखो तो पूरे लैडर का जो लेंथ दिया हुआ है ए बी, ये 4 मीटर का लेंथ है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मीटर का लेंथ. ठीक है. Weighing 200 Newton. So the weight of the ladder is also given to you. It is 200 Newton. It is placed as shown in figure 13. तो ये जो फिगर है इसका नंबर है 13. ठीक है. Then it says mu b is 0.25. That means coefficient of static friction at point B, surface B, जो कि wall है. ठीक है. वहां पे म्यू भी दिया हुआ है 0.25 and mu A is given to us as 0.35, so which is nothing but the floor. ठीक है. तो coefficient of friction at the floor is given to us as 0.35. Then is asking calculate the minimum horizontal force to be applied at A to prevent slipping. ठीक है. मतलब देखो तुमने लैडर खड़ा कर दिया वॉल के ऊपर and then if you start climbing it, there might be a possibility that a ladder will start sliding, slipping. ठीक है. From point A outwards. ठीक है. And then the ladder will start falling down. That's a very risky situation, isn't it? तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो कभी कभी देखा रहेगा, अगर कहीं पे अगर तुमने देखा है कि कोई आदमी लैडर के ऊपर चढ़ गया है तो नीचे एक बंदा खड़ा रहता है और वो लैडर को पकड़ के रखता है, isn't it? तो ये जो पकड़ के रखने वाला जो फोर्स है वही P है in our question, and that is what we need to find into this particular question. So देखो बहुत ही प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है. ठीक है. अब देखो जो आदमी ऊपर चढ़ रहा है उसका जो वेट दिया हुआ है, वेट फोर्स जो दिया हुआ है वो 60 न्यूटन का है. ठीक है. वो 60 न्यूटन का है एंड इट इज अप्लाइड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. आई विल जस्ट मार्क दैट पॉइंट ओवर हियर. ये यहां पे है वो पॉइंट. ठीक है. जो कि 3 मीटर के डिस्टेंस पे है. कैन यू सी? 3 मीटर के डिस्टेंस पे है. 2 मीटर के डिस्टेंस पे तुम्हारा 200 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है. ठीक है. टोटल लेंथ लैडर का 4 मीटर है. तो ये यहाँ पे नीचे ये पी दिख गया, ये नीचे पी दिया हुआ है. ठीक है. तो ये फोर्स पी कितना मुझे एट द बॉटम ऑफ द लैडर लगा के रखना पड़ेगा. ठीक है. सो दैट द लैडर विल नॉट स्लिप बैकवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ए. ठीक है. पॉइंट ए से पीछे नहीं आना चाहिए. तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है. देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. तो ये जो 600 न्यूटन का जो फोर्स उधर ऊपर लिख के रखा हुआ है, तो उसको मैं क्या करता हूं, उसको मैं शिफ्ट करके यहां पे बना देता हूं. ठीक है. लेट मी शिफ्ट इट एंड मेक इट ओवर हियर. ठीक है. ये है मेरा 600 न्यूटन का फोर्स. ठीक है. दिस इज 600 न्यूटन का फोर्स. लिख देता हूं मैं यहां पे दिस इज 600 न्यूटन. और जो ऊपर जहां पे दिखा रहा है वो 600 न्यूटन, वहां से उसको निकाल देता हूं मैं. ठीक है. I'll just very quickly erase it from there so that you understand that a 600 Newton force is transferred at the point. You can name the point whatever you want. ठीक है. सपोज मैंने जो मिड पॉइंट है लैडर का जहां पे वो 200 न्यूटन का लोड लगा के रखा हुआ है, उस पॉइंट का नाम एम रख दिया. जिस पॉइंट पे वो जो आदमी है वो चढ़ा हुआ है, ठीक है, लैडर के ऊपर, उस पॉइंट का नाम हमने लेटर से सी रख दिया. ठीक है. तो ये जो 600 न्यूटन का फोर्स है उसी को मैंने क्या किया है, शिफ्ट कर दिया है एट पॉइंट सी. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. तो वो फोर्स जो है वहां से मैं निकाल देता हूं. ठीक है. लेट मी
get rid of that force from there. ठीक है, so it will take just a second. I'll just remove this and I will also remove this. ठीक है, अभी वहां पे कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, इसको यहां से हम निकाल देंगे। 600 न्यूटन का फोर्स जो वहां पे ऐड कर रहा था, जो वहां पे दिखाया गया था, मैंने उसको पॉइंट सी पे शिफ्ट कर, तो कुछ नहीं किया है मैंने, देखो लाइन ऑफ एक्शन अभी भी वही है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन अभी भी वही है, सिर्फ मैंने उसको जहां पे वो ऐड कर रहा था, तो सीडी के ऊपर ही ऐड करेगा पॉइंट सी के ऊपर, तो वहां से उठा के जस्ट नीचे की तरफ दिखा दिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अनलेस एंड until the point of application is maintained and the line of action is maintained, it is absolutely fine if you want to transform a push force into a pull force or a pull force into a push force, कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरुआत करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, जो लैडर है, ठीक है, पॉइंट बी पे ऊपर है, पॉइंट ए नीचे है, तो ऊपर से ऐसा नीचे की तरफ खिसकेगा, वो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ खिसकेगा, तो पॉइंट बी जो है वो नीचे नीचे उतरेगा, और पॉइंट ए जो है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। isn't it, that is how the motion of the body is going to be। तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने इतना पी लगा के रखा हुआ है कि वो लैडर खिसकना नहीं चाहिए पीछे की तरफ। ठीक है, तुमको उसको धक्का नहीं मारना है अंदर। जब धक्का मारोगे अंदर तो पी का जो वैल्यू है वो और ज्यादा रहेगा। जब तुमको सिर्फ प्रिवेंट करना है स्लाइडिंग से, ठीक है, तो लैडर पीछे की तरफ खिसकने वाला है, तुमको सिर्फ क्या करना है, just enough force you need to apply to prevent this sliding, you don't have to push the ladder ahead। ठीक है, तो कभी कभी रेंज का क्वेश्चन भी पूछता है, प्लीज गो अहेड एंड वॉच my videos on the paper solutions for May 2025 and December 2024। मैंने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया हुआ है जहां पे रेंज फाइंड किया हुआ है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज लाइक द वीडियोस एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो शुरू करेंगे, पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं। अब पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, वॉल है और लैडर ऐसा सपोर्ट में रखा हुआ है ना, लैडर वॉल के ऊपर रखा हुआ है, तो वॉल क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है लैडर को। ठीक है, सपोर्ट्स आर ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शंस, सपोर्ट्स आर ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शंस। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन बना देता हूं। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है जो मैंने पॉइंट बी पे बनाया है, जो मैंने पॉइंट बी पे बनाया, तो इसका नाम मैं रख दूंगा एन बी। अब पॉइंट बी जो है, लैडर का जो पॉइंट बी है वो नीचे की तरफ खिसक रहा है, मतलब उसका इंपेंडिंग मोशन डाउनवर्ड्स है। ठीक है, इंपेंडिंग मोशन डाउनवर्ड है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूं इंपेंडिंग मोशन का डायरेक्शन। ठीक है, इंपेंडिंग मोशन का डायरेक्शन बना देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये फोर्स नहीं है, ये डायरेक्शन है इंपेंडिंग मोशन का। दिस इज इंपेंडिंग मोशन, इंपेंडिंग मतलब इट इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ खिसकने वाला है पॉइंट बी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉइंट बी नीचे की तरफ स्लाइड करने वाला है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे लगा देंगे हम, जो एक्ट करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये है तुम्हारा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एफ बी। इट इज म्यू बी मल्टीप्लाइड विद एन बी। तो म्यू बी का वैल्यू कितना है बॉयज एंड गर्ल्स, म्यू बी का वैल्यू है 0.25, 0.25 इंटू एन बी का वैल्यू मालूम नहीं है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ बी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट एम पे जो लोड है 200 न्यूटन, कुछ रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है। पॉइंट सी पे जो लोड है 600 न्यूटन, रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है, वर्टिकल ही लोड दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाएंगे पॉइंट ए पे। अब पॉइंट ए थोड़ा सा डेंजरस है। पॉइंट ए इंपेंडिंग मोशन किधर होगा, सो कैन यू थिंक ऑफ द इंपेंडिंग मोशन बॉयज एंड गर्ल्स। सो इंपेंडिंग मोशन जो रहेगा पॉइंट ए का, वो लेफ्ट में रहेगा, वो लेफ्ट में रहेगा, इजंट इट, पॉइंट ए लेफ्ट की तरफ खिसकेगा। सो दिस इज वेयर impending motion is going to be, impending motion। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे ऐड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करना चाहिए राइट डायरेक्शन में, इजंट इट। अगर पॉइंट एक खिसक के लेफ्ट में जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट में ऐड करेगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स राइट में ऐड करेगा, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका नाम एफ ए रहता है। और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी रहेगा, इसका नाम एन ए रहेगा। ठीक है, तो एफ ए इज गिवन बाय म्यू ए इंटू एन ए। म्यू ए का वैल्यू कितना है बॉयज एंड गर्ल्स, म्यू ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, देखो हमको म्यू ए का वैल्यू दिया है 0.35। ठीक है,
तो म्यू ए का वैल्यू 0.35 टाइम्स ऑफ एन ए। ठीक है। एवरी सिंगल फोर्स विच इज गोइंग टू बी देयर एक्टिंग ऑन द लैडर हैव बीन शोन इन टू द डायग्राम। अब और कोई नया फोर्स नहीं है जो लैडर के ऊपर एक्ट करने वाला है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो बहुत सारे अननोन्स है। एन ए इज एन अननोन टू मी, एन ए। ठीक है। एफ ए इज नॉट एन अननोन, एफ ए, एन ए मिल गया तो एफ ए मिल जाएगा। ठीक है। तो एन ए इज द फर्स्ट अननोन। देन एन बी इज द अननोन, एफ बी इज नॉट द अननोन, एफ बी डिपेंड्स ऑन एन बी। अगर एन बी पता चल गया तो एफ बी मिल जाएगा। तो एफ ए एंड एफ बी आर नॉट अननोन्स, एन ए एन बी आर दी अननोन्स, दो अननोन हो गया। और पी, तो ऐसे टोटल तीन अननोन है। तीन अननोन है तो तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन लगेगा। बॉडी मोशन में नहीं है मतलब इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम है तो समेशन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ Fy must be equal to zero, and the third equilibrium condition which does not come in block friction, it only comes in ladder friction, and that is going to be your moment। ठीक है। जो तीसरा रहेगा वो मोमेंट रहेगा। तो मोमेंट सेंटर चूज करना पड़ेगा मुझको। मोमेंट सेंटर ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स जमा हो गया है, जो कि पॉइंट ए है। पॉइंट ए पे पी एक्ट कर रहा है जो कि अननोन है, फाइंड करना है मुझको मिनिमम वैल्यू पी का, बताओ कितना है। एफ ए अननोन है। ठीक है। ऑफ कोर्स एन ए मिल गया तो एफ ए मिल जाएगा, लेकिन एन ए भी तो अननोन है ना, तो एन ए भी अननोन हो गया, इजंट इट। तो टोटल अननोन्स एट पॉइंट ए इज 3, एट पॉइंट बी इट इज ओनली 2। अगर तुमने ये मान लिया कि चलो एफ बी अननोन नहीं है, एन बी निकालो एफ बी मिल जाएगा, तो एक अननोन पॉइंट बी पे हो गया एन बी। लेकिन पॉइंट ए पे फिर कितना हो जाएगा, दो अननोन। तो अभी भी पॉइंट ए पे नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है, तो आई एम गोइंग टू टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। वी डू नॉट टेक समेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई एट द बिगिनिंग व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन लैडर फ्रिक्शन। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कीप दैट इन माइंड। ठीक है। तो मोमेंट एट पॉइंट ए लगाएंगे। So summation of moment about the point A is going to be equal to zero because there is no motion that has happened. तो moment zero हो जाएगा। ठीक है। तो P point A पे ऐड कर रहा है तो P इंटू जीरो हो जाएगा। ठीक है। FA point A पे ऐड कर रहा है तो प्लस FA इंटू जीरो हो जाएगा। एंड देन NA इज ऑल्सो एक्टिंग एट पॉइंट A तो वो भी जीरो हो जाएगा। NA मल्टीप्लाइड विद जीरो। ठीक है। NA जीरो नहीं होगा, मल्टीप्लाइड विद जीरो है। तो ये तो सारे चले गए यहां से। पॉइंट ए पे जितना भी फोर्स है, since point A has been taken as a moment center, all forces acting at point A will have their moment as zero। तो अब आगे बढ़ो। 200 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है। 200 न्यूटन का फोर्स कैसा घूम रहा है देखो तो, it is rotating, it is rotating in the clockwise direction। 200 न्यूटन का फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। अब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है। 2 मीटर पे एक्ट नहीं कर रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स यही स्टूपिड सा मिस्टेक करते हैं, वो देखते हैं 2 मीटर पे एक्ट कर रहा है, 200 इंटू 2 कर देते हैं एंड दे वंडर कि हमारा आंसर रॉन्ग क्यों आया है। ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जब मोमेंट लेने का वक्त आएगा तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखा जाएगा, और लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मोमेंट सेंटर से उसको लेना है। ठीक है। तो ये निकाल देता हूं मैं। ये मेरा 200 न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है। 200 न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन है, देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है 200 न्यूटन का। ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से कितना दूर है वो मुझे पता करना है। लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से कितना दूर है मुझे वो पता करना है। देखो ये वाला डिस्टेंस है वो, इजंट इट। ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है वो मुझे पता करना है। बहुत ही आसान है। इट इज द एडजेसेंट ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है। इट इज द एडजेसेंट ऑफ 60 डिग्रीज। और ये देखो ये 2 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे, है ना। ये 2 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये वाला, ठीक है, कितना हो जाएगा, चलो तुरंत लिख देंगे उसको। सिंस इट इज एडजेसेंट टू 60 डिग्रीज, ठीक है, उस ट्राइंगल में अगर मैंने कॉस ऑफ 60 पूछ लिया, कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60, मैं इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है। इसमें अगर मैंने कॉस ऑफ 60 पूछ लिया, इट इज एडजेसेंट, जो कि मुझे फाइंड करना है। ठीक है। डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज विच इज 2। so my unknown would be 2 into cos of 60, and we all know cos of 60 is 1 by 2, तो 2 into 1 by 2 हो जाएगा। ठीक है। 2 into 1 by 2 विच इज जस्ट 1 मीटर। तो ये जो अननोन है इसका वैल्यू आया है 1 मीटर। ठीक है। उसी तरह ये जो 600 न्यूटन का जो फोर्स है उसका भी लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द 600 न्यूटन फोर्स। तो ये लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से कितना दूर है वो मुझे पता करना है। ठीक है।
ये लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये वाला डिस्टेंस है उसका, isn't it? अब ये डिस्टेंस कितना है वो मुझे पता करना है। तो मुझे मालूम है ये वाला देखो, ये इंक्लाइंड वाला डिस्टेंस, इंक्लाइंड वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये देखो 3 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो इफ आई वांट टू गेट नाउ दिस डिस्टेंस, ठीक है, इट इज अगेन गोइंग टू बी द सेम कॉन्सेप्ट, कॉस ऑफ 60 लगाएंगे यहाँ पे, कॉस ऑफ 60 लगा देंगे। सो आई जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर, कॉस ऑफ 60 इज गोइंग टू बी, जो अननोन वैल्यू है जो मुझे फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज का लेंथ विच इज 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस ऑफ 60 विच इज 3 इंटू 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये डिस्टेंस 3/2 हो गया। हो गया। चलो उसके बाद एफ बी का तो डिस्टेंस पता ही है, ये जो हमारा एफ बी का लाइन ऑफ एक्शन है, ये कितना दूर है, एफ बी का लाइन ऑफ एक्शन कितना दूर है। एफ बी का लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं देखूं पॉइंट ए से, पॉइंट ए से, ठीक है, एफ बी का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से कितना दूर है अगर मुझे पता करना है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा। ठीक है, कॉस का ही फॉर्मूला लगा के फाइंड करेंगे। इस बार टोटल डिस्टेंस हाइपोटेनस का 4 मीटर है। ठीक है, तो कॉस ऑफ 60 वुड बिकम इक्वल टू the unknown value upon 4 meters. So this would come the unknown value 4 into cos of 60 which is 1/2, तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, 2 मीटर का डिस्टेंस हो गया। उसी तरह ये जो एन बी है, देखो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है एन बी का। ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन है एन बी का। ठीक है, तो ये पॉइंट पी से कितना दूर है ये मुझे पता करना पड़ेगा, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है मुझको। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस अगर मुझे पॉइंट ए से फाइंड करना है, तो देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये यहाँ पे बना दिया मैंने वर्टिकल डिस्टेंस। बॉयज एंड गर्ल्स, वैरिग्नॉन्स थ्योरम इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि वैरिग्नॉन्स थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे करना है। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये इन टर्म्स ऑफ साइन आएगा, साइन 60। साइन 60 पूछ लिया मैंने, दैट वुड बी दी ऑपोजिट, जो मालूम नहीं है, जो डिस्टेंस मुझे वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस विच इज 4। तो जो क्वेश्चन मार्क है वो हो जाएगा 4 इंटू साइन ऑफ 60 विच इज √3/2। तो क्वेश्चन मार्क आएगा 2√3। ठीक है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 2√3 आएगा। जो डिस्टेंसेस मालूम करना बहुत जरूरी है। तो अब मोमेंट लगाने का वापस वक्त है। पहले 3 फोर्स का तो हो गया, अब जो 200 न्यूटन जो कैसे घूम रहा था, इट वॉज रोटेटिंग इन व्हाट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो आई राइट ओवर हियर माइनस ऑफ 200 इंटू उसका डिस्टेंस था 1 मीटर इफ यू रिमेंबर। ठीक है, फिर उसके बाद ये 600 कैसा घूम रहा है, 600 भी कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो माइनस ऑफ 600 इंटू उसका डिस्टेंस इफ यू रिमेंबर वॉज 3/2, इज इट 1.5, 3/2। ठीक है, 1.5। उसके बाद जो हमारा एफ बी है वो कैसा घूमने वाला है, एफ बी कैसे घूम रहा है देखो तो। सो एफ बी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एफ बी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं लिख दूंगा प्लस एफ बी, जिसका वैल्यू ऑब्वियसली मैं लिखूंगा 0.25 इंटू एन बी, अभी फिलहाल मैं एफ बी लिख रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लाइज विद वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना याद है, देखो एफ बी का कितना डिस्टेंस था, इट वॉज 2 मीटर्स। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ठीक है, उसके बाद एक और आखिरी का फोर्स है एन बी, देखो कैसा घूम रहा है एन बी। ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो प्लस एन बी हो जाएगा, प्लस एन बी हो जाएगा। और एन बी का डिस्टेंस कितना है मोमेंट सेंटर से, मोमेंट सेंटर से उसका डिस्टेंस है 2√3, तो यहाँ पे हम 2√3 लिख देंगे। ठीक है, सो यही सबसे चैलेंजिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का, एंड इज ऑल इक्वल टू 0। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। ठीक है, P इंटू जीरो जीरो हो गया, एफ ए इंटू जीरो जीरो हो गया, एन ए इंटू जीरो भी जीरो हो गया, माइनस ऑफ 200 इंटू 1, सो आई राइट माइनस ऑफ 200, देन माइनस ऑफ 600 इंटू 3/2। ठीक है, तो 2 और 6 कैंसिल हो गया, 3 हो गया, 300 इंटू 3 इज माइनस ऑफ 900। ठीक है, फिर एफ बी का वैल्यू कितना है मेरे पास, एफ बी का वैल्यू है 0.25 इंटू एन बी, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, एंड देन प्लस 2√3 NB। ठीक है, प्लस 2√3 NB, 2√3 NB, दिस ऑल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से एन बी मिल जाएगा। सो एन बी वुड बिकम इक्वल टू, दैट्स 200 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.25 प्लस 2√3। बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो योर बेसिक algebra वेरी वेल। ठीक है, दिस इज नॉट द टाइम टू लर्न बेसिक algebra।
सो मेरा आंसर कितना आएगा, 200 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 0.25 प्लस 2 रूट ऑफ 3, ठीक है, root of 3. So the answer comes out to be 277.49. So NB का वैल्यू मुझे मिला 277.49 न्यूटन्स. प्लीज हाईलाइट योर आंसर. एनबी मिल गया. अब हमारा वक्त है समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई लगाने का. तो पी ये जो अननोन है ये एफ एक्स में आने वाला है तो इसको आखिरी में लगाएंगे, ठीक है. तो अब समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 लगा दो. तो जितने सारे फोर्सेज जो तुमको वर्टिकल दिखने वाले हैं सबको पकड़ लो, ठीक है. तो सबसे पहला तो वो Na दिख रहा है, Na, ठीक है. आई होप यू हैव आइडेंटिफाइड दैट देयर इज द वेरी फर्स्ट फोर्स Na जो वर्टिकली अपवर्ड है. फिर 200 न्यूटन, 600 न्यूटन एंड एफ बी विच इज 0.25 एनबी, इन सबको ले लो, ठीक है, ऑल वर्टिकल फोर्सेस. सो आई हैव Na विच इज गोइंग अपवर्ड्स, सो प्लस हो जाएगा. 200 विच इज गोइंग डाउनवर्ड्स, सो माइनस ऑफ 200. फिर 600 ऑल्सो गोइंग डाउनवर्ड्स, माइनस ऑफ 600. उसके बाद एफ बी ऊपर जा रहा था 0.25 टाइम्स ऑफ एन बी, ठीक है. सो प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ एन बी विच इज 277.49, क्योंकि अभी पता चल गया तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. तो एक दो तीन चार फोर्स था जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, मैंने सबको लिख दिया यहाँ पे. दिस इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे मिल जाएगा Na का वैल्यू. सो नाउ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग आवर फाइनल आंसर, बॉयज एंड गर्ल्स. अब क्या करेंगे ना, अब तुरंत हम एन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो जो वैल्यूज -200 है, -600 है, इन सबको हम राइट में भेज देंगे, ठीक है. सबको राइट में भेज देंगे, सबका साइन चेंज हो जाएगा. सो आई एम गोइंग टू गेट माय वैल्यू ऑफ एन एज, सो 200 प्लस बन गया, ठीक है, माइनस का प्लस बन गया, प्लस 600, ठीक है, उसको भी राइट में भेज दिया. एंड देन माइनस ऑफ 0.25 इंटू 277.49. सो माई आंसर इज कमिंग 730.6275. तो एन का वैल्यू जो है मेरा वो मुझे मिला है 730, ठीक है. एन का जो वैल्यू है मेरा दैट इज 730.6275. यू कैन राइट 730.63 न्यूटन्स, ठीक है. सो एन का वैल्यू हो गया 730.63 न्यूटन्स. एज आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मार्किंग योर आंसर्स, ठीक है. तो आंसर को मार्क कर दो. एन का वैल्यू पता चल गया मुझको. अब एन का वैल्यू भी हो गया, एन बी का वैल्यू भी हो गया. नाउ व्हेन यू कम बैक टू योर डायग्राम, ठीक है, अब देखो एन ए और एन बी का वैल्यू दोनों जो अननोन्स था वो फाइंड हो चुका है, ठीक है. तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पी का वैल्यू फाइंड करना है. दैट इज माय लास्ट अननोन दैट आई वांट टू फाइंड. एंड फॉर दैट आई हैव स्टिल वन मोर इक्विलिब्रियम कंडीशन लेफ्ट एंड दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0. तो मैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखने वाला हूं. समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लिख दूंगा. एंड देन आई एम गोइंग टू कलेक्ट ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. बॉयज एंड गर्ल्स, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को पकड़ना है. तो अब हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम लोग मार्क कर देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है. सो सबसे पहला कौन सा फोर्स दिख रहा है जो हॉरिजॉन्टल है? आई कैन सी दैट देयर इज दिस फोर्स पी, ठीक है, और वो राइट में जा रहा है. तो प्लस पी लिख देंगे. तो यहाँ पे मैंने प्लस पी लिख दिया. उसके बाद वहीं पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो एफ ए वाला भी फोर्स है, इजंट इट? एफ ए नाम का भी फोर्स है. सो एफ ए इज नथिंग बट व्हाट, 0.35 एन ए. और मुझे एन ए का वैल्यू पता चल गया है तो वो भी राइट में जा रहा है, तो प्लस साइन के साथ आएगा 0.35. एन ए का वैल्यू, एन ए का वैल्यू मिला है मुझको 730.63 न्यूटन, ठीक है. दो फोर्स हो गया, दो हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया. एवरी सिंगल हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट यू कैन सी इन द डायग्राम नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो अब बस एक फाइनल और हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है और वो है एन बी, ठीक है, वो है एन बी. सो एन बी का जो वैल्यू है, एन बी का जो वैल्यू वो हमने फाइंड करके रखा हुआ है. एन बी का वैल्यू 277.49 दिया हुआ है. देखो ये लास्ट वाला जो मेरा फोर्स है एन बी, दैट इज गोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, सो इट विल कम विद अ नेगेटिव साइन. तो माइनस ऑफ एन बी विच इज 277.49 must be equal to 0. Just confirm whether there are only three horizontal forces. तो एक तो है वो P जो राइट में जा रहा था, दूसरा है वो FA जो 0.35 Na है, और मुझे मेरे मेरे पास Na का वैल्यू है. फिर और थोड़ा ऊपर देखूंगा तो B के जगह पे तुमको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लेफ्ट में जाता हुआ दिखेगा. सो देयर आर ओनली थ्री हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन्वॉल्व इनटू द FBD, ठीक है, इन्वॉल्व इनटू द FBD ऑफ द लैडर, इजंट इट? सो
राइट एट द टॉप ऑल्सो। तो अब पी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। सो अगेन आई टेक हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, जो भी टर्म्स है, जो वैल्यूज है उनको राइट में भेज दो तो साइन चेंज हो जाएगा। सो आई विल बी हैविंग 277.49 विद द पॉजिटिव साइन, इजंट इट? एंड देन माइनस ऑफ 0.35 into 730.6275 या 63 भी लिख दो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। सो इट इज कमिंग 21 पॉइंट। सो मेरा जो पी का वैल्यू है, बी वेरी particular about the algebra that you are going to make use over here. You have to know all the simple things. So P is equal to 21.7695 newtons. That means P is going to be 21 point, let me write it as 77 newtons. So इसका मतलब है मुझे कितना P अप्लाई करना पड़ेगा? Minimum value of P that I need to apply from preventing the ladder to slide in the left direction. तो देखो, तो ये तुम्हारा लैडर था, पॉइंट ए पे देखो, पॉइंट ए से लेफ्ट की तरफ अगर लैडर चला गया, ठीक है, तो ये पर्पस फेल हो जाएगा, इजंट इट? तो लैडर को स्लाइड होने से या स्लिप होने से अगर तुमको रोकना है, ठीक है, हाउ मच मिनिमम अमाउंट ऑफ पी you need to apply at the point A. It is 21.77 Newton. So boys and girls, as I'm telling you, this is a very, very, very important question. I am hoping that this particular question paper might be containing ladder friction. So make sure that you understand this concept very well. It's time for us to move on ahead with one more question. I'll take one more question on ladder friction, slightly critical one again, and then we will try and understand this concept in further details as well. So boys and girls, that's all from me at this moment. Okay, I'll see you in the next video on ladder friction.